my dear students. Now we are going to discuss the signs and symptoms of schizophrenia. There are two major signs and symptoms of schizophrenia. That is, it is both positive signs and symptoms of schizophrenia, and there are negative signs and symptoms of schizophrenia. In positive schizophrenia, there is the delusions, there is the hallucinations, there is the aggression and excitement, and there is the suicidal tendency. And in negative symptoms, there is the affective flattening, there is the evolution, there is the anhedonia, and there is alogia. Also, there is the loosening of association. Now we can discuss it one by one. In delusion, what delusion means? It means false beliefs. And in hallucination, it is a disorder of perception. In hallucination, there is the absence of stimuli. You know what is the difference between hallucination and illusion? Hallucination means there is absence of stimuli, and in illusion there is the presence of stimuli. उसके बाद there is the aggression and excitement, and there is also the suicidal tendency. That means the patients we have a positive symptoms of schizophrenia have the following signs and symptoms. And in negative signs and symptoms, there is affective flattening. Affective flattening means there is a lack of emotions. The person with schizophrenia have a lack of emotions. The person with schizophrenia have a loss of motivation. The person with schizophrenia have lack of pleasure. And the person with schizophrenia does not form the words. And another sign is that is loosening of association. That means the person cannot connect between that. There is no connection between the ideas. So these are the signs and symptoms of this schizophrenia. We sum up the positive and negative symptoms of schizophrenia. And delusion means there is a false belief. The patient with delusion have a false belief. It is a delusional disorder. And in hallucination, it is that the patient cannot see the things which actually are. जो patient होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है. But in illusion, the object होता है, but उसको वो perceive गलत तरीके से करता है. Hallucination में वो object present नहीं होता है और perceive differently करता है. और उसके बाद aggression means इसका behavior जो होता है वो violent होता है. ये बहुत ज़्यादा aggressive बिहेव करता है. उसके बाद suicidal tendency, इसके suicidal thoughts आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको suicidal tendencies increase हो जाती हैं. और उसके बाद negative symptoms में affective flattening में affective flattening आती है. That means loss of emotions होते हैं इस पेशेंट को. उसके बाद evolutions होते हैं. evolutions का मतलब होता है कि loss of motivation, पेशेंट को motivation loss होती है. उसके बाद anhedonia, that means he have inability have a pleasure, इसको किसी भी एक्टिविटी में pleasure नहीं आता है, मजा नहीं आता है. alogia, इसकी word formation properly नहीं होते हैं, inability to form words. और उसके बाद loosening of association, इसका मतलब होता है कि दो words के बीच में, दो sentence के बीच में ये मिक्स ये कनेक्ट नहीं कर पाता है. इसकी लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो लॉस होती है. नेक्स्ट सब टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ schizophrenia. There are various types of schizophrenia and now we can discuss it one by one करेंगे discuss. First one क्या है? Paranoid schizophrenia. Second is hebephrenic schizophrenia. Third one is the catatonic schizophrenia. Fourth one is the residual schizophrenia, undifferentiated schizophrenia, simple schizophrenia, and post schizophrenic depression. Now we can discuss the paranoid schizophrenia. In paranoid schizophrenia, this paranoid means delusional. That means in paranoid schizophrenia, the patient individual have a delusion. There are various characteristics delusions which occur in paranoid schizophrenia. First one is paranoid schizophrenia, second is hebephrenic, third one is catatonic, fourth one is undifferentiated, fifth one is residual, sixth one is simple schizophrenia, and last one is the post schizophrenic depression. And first one that we are going to discuss is the paranoid schizophrenia. The word paranoid means delusion. That means the patient इसको क्या होते हैं, बहुत सारे delusions होते हैं और वो हम देखेंगे कौन कौन से delusion होते हैं. First one is the delusion of persecution. persecution का मतलब क्या होता है कि इसमें लगता है कि इंसान को कि वो मुझे दूसरा पर्सन मुझे मालवेंटली हार्मफुली मुझे हार्म करना चाहता है, जो आगे वाला पर्सन है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है. दैट इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ persecution. Second is called the delusion of reference.
डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि इस इंसान को लगता है, पेशेंट को, शिजोफ्रेनिया पेशेंट को लगता है कि जो आगे वाला या दूसरा बंदा है ये मेरे रिलेटेड बातें करता है। दैट इज कॉल्ड एज द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें लगता है कि ये मुझे हार्म करना चाहता है, और दूसरे में लगता है, रेफरेंस में क्या लगता है, ये पेशेंट मेरे रिलेटेड बातें करता है। उसके बाद है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। इस डिल्यूजन ऑफ जेलसी का मतलब क्या होता है कि इसको लगता है कि जो मेरा पार्टनर है वो अनफेथफुल है। दैट इज कॉल्ड एज द डिल्यूजन ऑफ जेलसी। समझ आया? उसके बाद एक और डिल्यूजन इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। ग्रेडियोसिटी का मतलब क्या होता है कि इस पेशेंट को लगता है कि मेरे पास पावर है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास मनी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है। दैट कम्स अंडर द डिल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। एंड और एक चीज आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड द हेलुसिनेटरी वॉइसेस। इसमें इस पेशेंट को बहुत सारे हेलुसिनेटरी वॉइस होते हैं, दैट मींस फॉल्स वॉइसेस आती हैं इस पेशेंट को, किसमें, इस पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया में। And the next schizophrenia type is that is called as the epiphenic. Epiphenic schizophrenia. What does epiphenic schizophrenia क्या होता है? जो ये पर्सन होता है ये इसेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक होता है, इलॉजिकल होता है, और इसकी लैक ऑफ इमोशंस होते हैं। That comes under the epiphenic schizophrenia. And the third type of schizophrenia, that is known as catatonic. Catatonic schizophrenia. Catatonic, you know the word catatonic, that means इसकी motor activity loss हुई होती है, loss of motor activity। इस मोटर एक्टिविटी में, इस कैटाटोनी में दो चीजें होती हैं, वन इज कॉल्ड एज अ कैटाटोनिक स्टूपर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। वो कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में दो चीजें होती हैं, इसकी एक्टिविटी लॉस होती है, बट दो चीजें होती हैं इसमें, दैट इज द वन इज कॉल्ड एज स्टूपर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द एक्साइटमेंट। What does catatonic stupor means? इसकी जो मोटर एक्टिविटी है it decreases, that means decreased motor activity, decreased motor activity। और इसमें एक कंडीशन आती है जो ये पेशेंट करता है, that is called as the vexillability। vexillability, vexillability का मतलब क्या होता है कि ये पेशेंट स्टैटिक पोजीशन बहुत टाइम, एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक रहता है, that is called as the vexillability। वो किस में आता है, स्टूपर में। और कैटाटोनिक एक्साइट में क्या होता है, इसमें इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी होती है, इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी। तो ये इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी जब होती है तो इंसान जो है, इंडिविजुअल है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन जाता है, और इस एग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उस टाइम इस पेशेंट को केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट विल बिकम ए लीथल। अगर ये लीथल बन जाएगा, देन वी कॉल इट एज द पर्निशियस कैटाटोनिया। That is called as a pernicious catatonia, जब ये बहुत ज्यादा लीथल बन जाएगा। तो ये किस में आता है, कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में। क्लियर? रेसिडुअल शिजोफ्रेनिया, जो ये रेसिडुअल शिजोफ्रेनिया है, इसमें क्या होता है, देयर इज द लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, loosening of association, and there is the social withdrawal, and their person is also illogical. That comes under the residual schizophrenia. And the next type of schizophrenia is the undifferentiated. ये वर्डिंग से ही पता चलता है, अनडिफरेंशिएटेड मीन्स ये किसी कैटेगरी में लाई नहीं करता है। दैट मीन्स अगर पेशेंट को जो सब टाइप्स हमने पढ़े हैं, अगर वो सिम्टम्स नहीं आएंगे और दूसरा जो अगर उससे ज्यादा सिम्टम्स ऑकर करेंगे, दैट मीन्स ये इस कैटेगरी में हमें लाई नहीं करते हैं। इसमें सब टाइप्स के सिम्टम्स से कम हो सकते हैं, या सब टाइप्स जो हमने पढ़े हैं उससे सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं। तो दैट इज कमिंग अंडर दैट इज अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया इज अ सिंपल शिजोफ्रेनिया।
सिंपल शिजोफ्रेनिया मींस कि ये पेशेंट क्या होता है, दैट मींस देयर इज द सोशल withdrawal, there is emotional problems, and there is also the behavioral problems in the simple schizophrenia. And the last type of the schizophrenia is the post schizophrenic depression. पोस्ट शिजोफ्रेनिक डिप्रेशन का मतलब होता है जो भी जितने सारे सब टाइप्स हमने पढ़े हैं, ये उसके बाद जो भी टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया ऑकर हो जाएगा, दैट कम अंडर द पोस्ट शिजोफ्रेनिक डिप्रेशन. इन पोस्ट में इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सुसाइड होती है. द सुसाइडल टेंडेंसी increases in the post schizophrenic depression. तो हमने ये शिजोफ्रेनिया टाइप्स डिस्कस किए. फर्स्ट हमने किया है डिस्कस पैरानॉइड, उसमें हमने बहुत सारे डिल्यूजन्स देखे हैं. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कैटाटोनिक, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी एंड हेलुसिनेटरी वॉइसेस. उसके बाद हमने स्किज़ोफ्रेनिक पढ़ा, उसके बाद हमने ये डिसऑर्गेनाइज्ड पढ़ा, अनडिफरेंशिएटेड पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल शिजोफ्रेनिया, और लास्ट हमने पढ़ा है पोस्ट शिजोफ्रेनिक डिप्रेशन. दे वर द टाइप्स ऑफ द शिजोफ्रेनिया. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्नोसिस. हम क्या करते हैं, हम करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि पेशेंट को शिजोफ्रेनिया. जब हम डिटेल्ड हिस्ट्री इसका लेंगे, डिटेल्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेगा तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कौन सा टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया है. तो वहां पे एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, तो एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आपको वहां पे दिखेंगे. जब आप सीटी स्कैन या एमआरआई रीड करोगे तो वहां पे आपको अगर दिखेगा देयर इज एन एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, तो आप डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट है शिजोफ्रेनिया. और इसको आप डिटेल्ड हिस्ट्री लोगे पेशेंट की, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि पेशेंट है शिजोफ्रेनिया. दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेस टॉपिक, एंड आई होप आपने समझा होगा. तो नेक्स्ट अगर जो भी पेंडिंग है वो हम कल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.